चलिए। Honorable Chief Minister, respected Health Minister, Honorable Education Minister, who are joining through VC, respected Member Parliament Karnal, Mr. Puneet Ranjan, Global CEO Deloitte, respected Chief Secretary, Principal Secretary to CM, Mr. Uma Shankar, ACS Health, Mr. Rajiv Arora, Dr. Amit Agarwal, Mr. Venkat, CEO India, Deloitte, Mr. Romal, Country Head Consultancy, Deloitte, Vice Chancellor PGIMS, Mr. Kalra, Mr. Nishant Yadav and his team, Dr. Reddy, President, Public Health Foundation of India, Dr. Dhruv and friends. It is my absolute pleasure and privilege to welcome you for the inauguration of the Karnal model of supervised home care, a model pilot conducted in Karnal district and appropriately named Sanjeevani Pariyojana, that is life-saving project. Sir, there is a background to this project, sir. Honorable CM had deputed senior officers from Chandigarh to each district to ensure efficient and effective COVID management. I was assigned Karnal district. This was about a month back. The surge of second wave was at its peak, with positivity rate exceeding 25% on a large sample size of 50,000 or 60,000. There was tremendous pressure on hospital beds, oxygen ICU beds, and Honorable CM himself, along with his team in the CM office, was personally ensuring the supply of oxygen to each and every bed, each and every hospital, each and every district. And while this entire firefighting and this management was going on, Haryana was ranked among the top performing states in terms of statistics, in terms of fatality ratio or in terms of case positivity ratio. But while this was going on, we analyzed and we realized that about 6 to 7% of the total number of COVID positive patients are in hospitals, the rest were in homes. And they were confused with multiple medical advice in a state of panic and fear, anxiety and uncertainty. And it was considered desirable that we must have a supervised home care system which is strong, robust and resilient. And that is when we conceived and planned the Sanjeevani Pariyojana. And Dr. Dhruv Singh from PGIMS mentioned to me that Mr. Puneet Ranjan, who is a son of the soil from Haryana, Global Deloitte CEO, he was also contemplating to strengthen home care system in his home state. And I contacted him and I requested Honorable CM to give his permission and blessings to start the model pilot in Karnal district, and the project was born. And I and Puneet, we clicked from the word go, not only because there was an alignment of thoughts about supervised home care system, but also because we are fellow Rohtakis. We presented a plan to Mr. Puneet and his entire team in USA and India over video conference, and I still remember him saying that what you are saying is music to my ears. Next slide, Nishant. The integrated and comprehensive plan, end-to-end care up to intermediate health care for the home care patients was instantly approved for funding, and the cost of the project was about 5 crores, sir. And initially we thought that the delivery and implementation will take about 4 to 6 weeks. And we agreed to the collaborative venture, which is a unique PPP model, that is public-private participation. I would say PPP with a difference, because here the private partner is not for profit but for philanthropy. So it is a PPP with a difference. Next slide, please. Sir, in fact, on the 10th of May, we formally agreed, and there were 7 pillars of the program. Sir, there were 3 main objectives of the supervised home care. Number 1 was to reduce pressure on the tertiary care system. Second was end-to-end home care for the isolated home patient, which were about 94% on an average throughout the state, and which had 7 pillars, in fact 6. One is teleconsultation, that is by the MBBS pre-final and final year student duly trained. So in fact, on the same day, Honorable PM had also said that we must augment our resources by taking the MBBS students also in the teleconsultation. And I think we are probably one of the first state to start it. Then the medical kits, home care kits to be given to each patient, field hospitals at CHC level. Honorable CM had desired that the healthcare system should be decentralized and the field hospital should be fully equipped with oxygen concentrators or oxygen facility. Then lab tests, so that lab tests could be conducted. The 5th and 6th day in COVID management is most critical, and that is when we thought that even the lab tests can be done right at home. So a mobile sampling team will go and conduct lab tests. So for that also we have to make arrangements. Advanced life support ambulance systems, sir, for each CHC,
so that if critical care patient from home care have to be shifted to field hospital or intermediate health care, then ambulance should be in a state of readiness, so they have to be arranged. Then an integrated command and control center has been created, which basically tracks the resources, inventory, that is oxygen availability in terms of the patient data and the complete inventory of resources in the district. So these were the 6 pillars. In fact, there was an instructional video on IEC material which has been designed by our public relations department, Dr. Amit Agarwal, and their team of Deloitte. And the third objective was to cater to the not only COVID third wave post-COVID, but also take care of general community health program. So right from the word go, when me and Puneet, we were discussing the program, sir, we thought the model has to be replicable, scalable and sustainable in the long run. So that was the most important component of the planning. Next slide, please. So sir, timeline of the project, just to give a brief idea, sir. जैसे मैंने आपको बताया सर, ये 10 मई को तो formally we agreed on a presentation and there was complete alignment of thought because both Puneet and our team thought that supervised home care has to be made strong and end-to-end solution, integrated solution has to be provided. और सर हमने जो execution करके आपसे we are proud and happy to share कि आज we are getting the inauguration done through Honorable Chief Minister, and this is within 2 weeks of initial approval against the initial estimation of 4 to 6 weeks. Sir, probably this is one of the fastest execution since planning, conception of the project and finally implementation. And the credit goes to the brilliant execution team on the ground, both sides, from Deloitte. Of course, Puneet Ranjan led from the front, and with Mr. Romal Shetty and his entire team, and Nishant Yadav, our young, bright and dynamic officer, Deputy Commissioner. And next slide, please. Sir, the components जो हमारे इस project में थे, you can see the scale and magnitude of project because procurement had to be done for equipment, supplies, services. For example, 200 oxygen concentrator और वो सब 10 liter per month के हैं sir, costing 3 crore. Then pulse oximeter 6,500. लैब टेस्ट सर हर एक जगह पे घर में जाके पेशेंट का जो भी एडवाइस करेंगे हमारे कंसल्टेंट उसके हिसाब से. एंड ALS एम्बुलेंसेज 8 एम्बुलेंसेज फॉर 6 months ऑन हायरिंग बेसिस. और ये उसके साथ साथ जो हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 200 स्टूडेंट्स हैं और इनको जो ट्रेन किया गया उसके लिए जो प्रोफेशनल सपोर्ट हमें मिला है डॉक्टर ध्रुव सिंह, डॉक्टर दुरेजा एंड हिज टीम इन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर रेड्डी फ्रॉम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया. So उनके प्रोफेशनल सपोर्ट से फाइनली दिस प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड. और जो पूरी टीम है सर दोनों तरफ से, रोमल और निशांत और उनकी पूरे ग्रुप में, दे वर्क डे एंड नाइट लिटरली. एक तो सर टाइम जोन का डिफरेंस था, जो हमारे यहाँ दिन होता था वहाँ रात होती थी. आई थिंक पुनीत इज एक्जैक्टली 12 hours अवे, और रात था तो दिन था, तो वी वर लिटरली थ्रू टेक्स्ट, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड थ्रू टेलीफोन कॉल्स वी वर डायरेक्टली मॉनिटरिंग ऑन अ डेली बेसिस. और पूरी टीम दे वर्क विद complete passion, जोश और जुनून और उत्साह के साथ सर. And we are happy sir, the project has been finally implemented, is being inaugurated by you. And the entire procurement sir, it was not only the procurement had to be done in a manner, because I think remember Puneet telling me कि we have to devise an ethical mechanism of procurement, कि not only हम speed से procure कर रहे थे, we have to make sure कि due diligence जो है वो फिर भी रहे. और उसमें हमारा हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के जो रेट्स थे वेंडर्स के पूरे नेशनल और लोकल लेवल पे लेके उनके रेट कंपेयर करके, एंड देन द बेस्ट प्राइसेस वर ऑब्टेन्ड. समटाइम्स द प्राइसेस वर हाई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पुनीत इमीडिएटली गेव अ गो हेड इवन इफ द प्राइसेस वर हाई, बट द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग वाज इमेंस. सो सर, विद दिस द प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. नेक्स्ट. Now sir, before I invite Mr. Puneet Ranjan, Global CEO of the Deloitte, a brief introduction about him. Sir, Puneet is the Deloitte Global CEO, leading an organization that is leading professional service organization in the world with $50 billion turnover. He has about 3 lakh employees all over the world and 50,000 alone in India. And he has been CEO since 2015, and he has led Deloitte with about $50 billion revenue since in 2020. Sir, Puneet is a son of Haryana, as I mentioned, son of the soil, and he has deep roots and deep-rooted connection, emotional bond with Rohtak in particular and Haryana in general. And having grown up in Rohtak, he moved to United States on a Rotary Foundation fellowship, and the rest is history. He is passionate about leading business with a purpose, and under Puneet's leadership, Deloitte launched World Class, a global effort
to prepare 50 million futures for the world of opportunity based on his belief that when society thrives, business thrives. Puneet has several accolades, including he being named as Empower to the list of top 100 ethnic minority executive role models 2020. The Indian Diaspora Business Leader list recognized Ranjan as one of the 50 executives from the Indian diaspora of top tier international corporation 2020. Outside of Deloitte, is a member of the Business Roundtable, the International Business Council of the World Economic Forum, and serves as a member of the several not-for-profit board, including the US-India Strategic Partnership Forum. Previously, he served as the chairman of the United Worldwide. Sir, if you will remember, 2016 में हमारा हैपनिंग हरियाणा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनीत रंजन जी को हरियाणा गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया था. और उनके बारे में इतना ही कहूँगा, with his amazing speed of decision making and amazing clarity about everything, कि जैसे if I say उनके बारे में कि मंजिलों पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते. मिस्टर पुनीत रंजन. वाह वाह वाह. Devinder ji, you are making me sound a lot better than I really am. Honorable Chief Minister Manohar Lal ji, आपको मिलके बहुत खुशी हुई. धन्यवाद. आप और मैं तो दोनों रोहतक से हैं. बिल्कुल बिल्कुल. It has been a real pleasure talking to you and also getting to know Devinder. It's a real honor, Chief Minister ji, that we get a chance to work with you, to collaborate with you, and to take part in Sanjeevani Pariyojana. Devinder, Nishant, the entire team has worked seamlessly with the Deloitte team. And we commend you, Honorable Chief Minister ji, commend Devinder ji. Devinder and I have decided that we're going to call each other by first name basis. So Devinder, Nishant has done an excellent job and the entire Haryana team, and in particular Dr. Reddy, who has been a great mentor, and Dr. Chowdhury. By the way, Puneet ji, Devinder ji is also a Rohtki. Is he? This must be very, very good. ये सारे रोहतकी इकट्ठे हुए. सारे रोहतकी इकट्ठे हुए. करनाल के बाद हमें Honorable Chief Minister जी रोहतक का करना है, नहीं तो मेरी मदर मेरे को कभी भी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. I welcome the idea. मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि आपने रोहतक क्यों नहीं किया. I welcome the idea. So I just want to say it's been really wonderful to work with the entire team for this bold, innovative and fit-for-purpose collaboration. I also want to acknowledge the other honorable ministers that have joined and guests, and also want to point out your Principal Secretary Uma ji, who has been really working with us as well. As Devinder said, this is a unique public-private collaboration. It's been completed in record time with great collaboration. Our purpose is to make an impact that matters, and through this collaboration, we're helping to expand the hospital ward, which will enable those with mild to moderate COVID to recover at home, thereby freeing hospitals to treat the critically ill. As I've said, this is personal to me. As Devinder said, I grew up in Rohtak. After the Karnal pilot, I made a commitment that we hope to expand next. I made a commitment to Dr. Chowdhury, who also happens to be a family friend, that we will expand this to Rohtak. I also want to add one more thing. We did decide today that in addition to paying the honorarium for the 200 wonderful MBBS students from Karnal, we're also going to pay an honorarium to the ASHA workers. Very good. So we'll work with Devinder, but Deloitte will take that responsibility. I think they're doing wonderful work, and we will fund their PPE equipment as well as pay an honorarium. Devinder, back to you. Thank you very much, Puneet, for this wonderful introductory speech. And now I would request our real heroes, the persons on the ground, like our field marshals, Romal Shetty from Deloitte, and Mr. Nishant Yadav, our young, bright, dynamic Deputy Commissioner. Regarding Romal, I'll briefly, sir, mention Romal Shetty is the President Consulting at Deloitte India, where he leads a team of over 3,000 professionals.
He has over 20 years of experience in advisory services across large-scale programs covering business and technology domain, and he has worked in over 30 plus countries. Romal's key focus area are financial and operational turnaround, customer experience, product innovation, and Romal is a chartered accountant by qualification and is a member of Deloitte India's leadership team. And Nishant, of course, needs no introduction. Everybody knows, sir. They both have, sir, worked together day and night, burnt the midnight oil. So, sir, a brief presentation now over to Nishant for a presentation about the actual ground implementation of the project. Thank you. नमस्कार सर। सर, जो हमारी ये संजीवनी परियोजना है, इसके कुल 6 घटक हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका टेली कंसल्टेशन है सर, जिसके अंदर 200 MBBS स्टूडेंट्स ऑफ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हैव बीन ड्रॉप्ड इन हर एक स्टूडेंट को 25 पेशेंट्स हमने अलॉट किए हैं, जो इनको दिन में 2 बार सुबह और शाम पेशेंट्स को कॉल करके उनका हालचाल पूछते हैं और उनके पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, उनका तापमान कितना है, कोमोर्बिडिटी है या नहीं है, कफ है, कोल्ड है, सारी डिटेल्स वो फिल इन करते हैं। सर, हम डेलोइट के सहयोग से हर एक MBBS स्टूडेंट को 5,000 रुपए हर महीने का ऑनरेरियम भी दे रहे हैं सर। और ये जो स्टूडेंट्स उन पेशेंट्स को कॉल करते हैं, उसके बेसिस पे छटनी करते हैं उन पेशेंट्स की जिनकी सिचुएशन या जिनकी वाइटल्स हैं वो बिगड़ रही है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। सर, ये प्रोजेक्ट जो कॉल टेली कंसल्टेशन प्रोजेक्ट है, ये लगभग हमें शुरू किए हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं और इस दौरान 5786 पेशेंट्स इन 200 स्टूडेंट्स को अलॉट किए गए थे और इन्होंने उनको 34,000 से अधिक कॉल्स टोटल की है और 11 पेशेंट्स इन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनकी कंडीशन घर पे थे लेकिन उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी, तो उनको हमने फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है। इस पूरे प्रयास के टेली कंसल्टेशन कंपोनेंट के पीछे हमारा प्रयास ये है सर कि कोई भी लेट डिस्कवरी ना हो, अर्ली डिटेक्ट करके जल्दी हम जितना जल्दी अस्पताल पहुंचा सकें ताकि ह्यूमन लाइफ को बचाया जा सके। इसके लिए सर हमने जो 200 स्टूडेंट्स हैं इनको ट्रेनिंग दी थी कि क्या क्या किस तरीके से इनको कार्रवाई करनी है, किस तरीके से डिटेल्स पूछनी है और उसके बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम से भी और अपने घर से भी ये स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और हमने उनको एक स्प्रेडशीट दे रखी है जिसमें वो डेटा फिल इन करते हैं। इन फोटोग्राफ्स के साथ साथ हम एक वीडियो भी सर आपको इस पूरे कंपोनेंट के बारे में दिखाना चाहेंगे। टेली कंसल्टेशन ताकि कोविड से प्रभावित कुल मरीजों के 94% को घर पर ही स्वास्थ्य सलाह उपलब्ध कराई जा सके, जिससे मुख्य अस्पतालों पर बोझ कम पड़े। इसके तहत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 200 छात्रों को इस काम में लगाया गया है, जो प्रतिदिन 2 बार फोन द्वारा घर में आइसोलेट मरीजों से संपर्क करते हैं। उनसे उनके तापमान, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल एवं शारीरिक स्वास्थ्य बारे जानकारी दी जाती है। मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया है जिन्हें टेली कंसल्टेशन ड्यूटी के लिए बोला गया है। उसमें हम जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनको ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं, जो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, उनको हम दिन में रोज 2 बार कॉल करके उनका ध्यान रखते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। हम उनसे दिन में सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपको कोई बुखार है, आपको खांसी है, दस्त है, या उनके पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू भी पूछते हैं, जिससे हम अगर उनको कोई खराबी है हम उसे जल्दी पकड़ सकते हैं और हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं हम उनको आगे ये बात पहुंचाते हैं ताकि वो उस पर एक्शन ले सकें। जैसे ही मालूम पड़ता है कि मरीज की तबीयत बिगड़ रही है तो तुरंत उसे इलाज हेतु कोविड अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। हर विद्यार्थी पर रोजाना 25 मरीजों से संपर्क करने का दायित्व है, जो उसे तब तक निभाना है जब तक मरीज सही नहीं हो जाता। इस प्रकार घरों में आइसोलेट 5,000 मरीजों की देखभाल एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कार्य हेतु हर विद्यार्थी को 5,000 रुपये महीना प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, जिस पर 30 लाख रुपए का खर्च आया है और जिला प्रशासन करनाल की मेहनत से ये मानवीय सेवा का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। सर, इसमें जो अगला कंपोनेंट है, जो दूसरा घटक है इसका संजीवनी परियोजना का, वो होम केयर किट्स है।
जैसा कि सर आपके मार्गदर्शन में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में डायरेक्शंस हुई थी कि हर एक एक्टिव कोविड पेशेंट को एक होम किट दी जानी है, जिसके टोटल 15 कंपोनेंट होने चाहिए, जिसमें जरूरी मेडिसिन है, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, स्टीमर और मास्क, ये चीजें दिए जाए। तो उसके तहत हमने टोटल 6500 होम केयर किट्स प्रिपेयर की है और मैं आज बड़ा प्राउडली गर्व के साथ सर बता सकता हूँ कि करनाल में कोई भी ऐसा एक्टिव पेशेंट नहीं है जिसके पास ये होम केयर किट ना हो। और इन किट्स की सहायता से सर हम जैसे बताया टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, उसमें जो स्टूडेंट्स कॉल करते हैं जब पेशेंट्स को, तो किट में जो ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स हैं, उनकी सहायता से एग्जैक्ट रीडिंग ली जा सकती है और पेशेंट की एग्जैक्ट कंडीशन का पता किया जा सकता है कि वो कितना क्रिटिकल है। तो सभी आइसोलेटेड होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को सर ये किट्स दे दी गई है और इसके बेसिस पे 197 पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए गए जिनको स्पेशलिस्ट के द्वारा कंसल्टेशन किया गया। 11 पेशेंट्स को उनके घर से ले जाकर के फील्ड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड में एडमिट कराया गया क्योंकि उनकी कंडीशन हमने इस किट के जरिए पता किया कि खराब है। और कुछ पेशेंट्स को मैं आगे जो इसका अगला घटक बताऊंगा, एक वो जो है लैब टेस्ट का है, तो उनको लैब टेस्ट भी रिकमेंड किए गए। सो इस प्रकार से सर ये जो होम केयर किट्स है ये काफी सहायक सिद्ध हो रही है पेशेंट्स के अर्ली डिटेक्शन में, ताकि उनकी कंडीशन ज्यादा खराब ना हो पाए। डोर टू डोर जाकर के हमारी जो टीम्स है पीएचसी के स्तर पे हमने टीमें बनाई है, जिले में जो टोटल 33 पीएचसी है उनके स्तर पे किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके द्वारा। एक वीडियो के जरिए अब हम इसके बारे में डिटेल में बताना चाहेंगे। होम आइसोलेशन किट डिस्ट्रीब्यूशन। होम आइसोलेटेड मरीजों को घर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा करीब 5000 स्वास्थ्य किट सिविल सर्जन कार्यालय में तैयार करवाई गई है। प्रत्येक किट में 15 आइटम शामिल हैं, जिनमें एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयों, मास्क, AAA बैटरी, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर और एक बुकलेट डाली गई है। दवाइयों में पैरासीटामोल, विटामिन बी, ORS, अणु तेल, काढ़ा और गिलोयवटी दी गई है। होम आइसोलेटेड किटों के वितरण का कार्य 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 7 शहरी डिस्पेंसरी के माध्यम से नोडल अधिकारी की देखरेख में किया जा रहा है। ANM व आशा वर्कर अपने क्षेत्र के कोविड पॉजिटिव मरीज के घर तक किट पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। वितरण के दिन से लेकर 1 सप्ताह बाद आइसोलेटेड मरीज से 2 चीजें, ऑक्सीमीटर और स्टीमर, ये वापस ले लिया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह सैनिटाइज करने के बाद दूसरे आइसोलेटेड मरीजों को दे दिया जाता है। इन होम आइसोलेट स्वास्थ्य किटों के लिए 6500 थर्मामीटर और इतने ही पल्स ऑक्सीमीटर और स्टीमर खरीदे गए हैं, जिस पर 50 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। जिला प्रशासन द्वारा पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ जनमानस की सेवा के लिए ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सर संजीवनी परियोजना का जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स डेवलप करना है। जब सर दूसरी जो वेव थी, सेकंड वेव थी, पीक पे थी, तो ये सामने आया कि सारे के सारे पेशेंट्स जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हमारे जिले स्तरीय हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहीं आके एडमिट हो रहे थे, चाहे उनको सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही क्यों ना हो। तो इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे जितने भी CHCs हैं सर 8, उन सब जगह ऑक्सीजन बेड्स लगाए हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के थ्रू जो 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने डेलोइट के सहयोग से लिए हैं सर, वो 10 LPM वाले कॉन्सेंट्रेटर से अच्छी क्वालिटी के, उनको फील्ड हॉस्पिटल्स में लगाया गया है और हर एक CHC में मिनिमम 15 से 20 बेड हमने तैयार किए हैं और एक जिला स्तरीय फील्ड हॉस्पिटल बनाया है जिसकी क्षमता 100 बेड की है। सो एक टोटल जो 9 फील्ड हॉस्पिटल्स हमारे बने हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है और होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए एक सिक्योरिटी है सर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जब भी वो कोई बेड लेना चाहे तो इमीडिएटली आके बेड ले सकते हैं। क्योंकि पहले हमने काफी डिस्ट्रेस कॉल्स देखते थे, काफी सारे लोगों को पैनिक कॉल्स आती थी कि अचानक से सैचुरेशन ड्रॉप हो गया, हमें बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो एक सिक्योरिटी के तौर पे उनको एश्योरेंस दिया गया है कि आपके लिए बेड ऑलरेडी आरक्षित है, सुरक्षित है, जब भी आप आना चाहें इन फील्ड हॉस्पिटल्स में अपना बेड ले सकते हैं। अभी अगर मैं आज की पोजीशन की बात करूं सर, ये हमारी जो फील्ड हॉस्पिटल है लगभग हफ्ते भर से ऑपरेशनल है, तो 15 पेशेंट तो करनाल जिले वाले जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसमें एडमिट है और 37 पेशेंट हमारे CHCs में एडमिट है, यानी लगभग 30% कैपेसिटीज पे अभी CHCs ऑक्यूपाइड है और जिनको ऑक्सीजन की क्षमता दी जा रही है।
इसका सर इम्पैक्ट ये हुआ कि ये लगभग 52 पेशेंट्स जो फील्ड हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, ये हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बेड की को नहीं ऑक्यूपाई कर रहे, तो वो बेड हमें अवेलेबल है और ज्यादा सीरियस पेशेंट्स एडमिट करने के लिए, और इनका जो ट्रीटमेंट है CHC स्तर पर ही किया जा रहा है सर। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारी CHC लेवल फील्ड हॉस्पिटल्स की हैं। इसके बाद सर जो चौथा कंपोनेंट है इसका वो लैब टेस्ट है सर। जैसा कि बताया गया है कि जो एक्टिव पेशेंट है उसकी कंडीशन को और नजदीकी से और क्लोजली जानने के लिए इन्फेक्शन के चौथे या पांचवें दिन 3 प्रकार के टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ब्लड शुगर, CRP टेस्ट, इनको करवाया जाएगा तो हम और बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं है और उसकी क्रिटिकलिटी पेशेंट की कितनी है। तो हमने सर डेलोइट के सहयोग से हिंदुस्तान वेलनेस लैब को इसके लिए चिन्हित किया है और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर जाकर के सैंपल कलेक्ट करना उन पेशेंट का और उनका टेस्ट करना और रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर देना, ये प्रयास किया गया है। तो हर रोज शाम को 7 बजे जैसे ही हमारे पास दिन भर के पूरे पेशेंट्स की लिस्ट आती है, वो लिस्ट हम लैब के साथ शेयर करते हैं। ये अगले दिन अपना रूट चार्ट बनाते हैं। इन्होंने हर एक CHC पर एक लैब टेक्नीशियन रखा है जो अपने अपने CHC के अंदर आने वाले गाँव के पेशेंट्स का घर घर जाकर के ब्लड सैंपल लेके आते हैं और इसका टेस्ट करने के लिए गुड़गांव भेजते हैं। रात भर जो है टेस्ट किए जाते हैं और सुबह 9 बजे से पहले इनकी रिपोर्ट ऑनलाइन हमें प्राप्त हो जाती है। ये रिपोर्ट जो 200 MBBS स्टूडेंट्स हैं उनको अवेलेबल करा दी जाती है और वो उनको जो 25 पेशेंट्स अलॉटेड हैं तो वो अपने हर एक स्टूडेंट अपने 25 पेशेंट्स की रिपोर्ट देख लेता है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करता है वो स्टूडेंट कंसल्टेंट के सहयोग से कि किस पेशेंट को होम आइसोलेशन से ऑक्सीजन बेड पे शिफ्ट करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा इकट्ठा कोलैबोरेटिव एफर्ट है सर। पिछले 2-3 दिन में जब से लैब टेस्ट वाला इनिशिएटिव शुरू हुआ है हमने 77 टेस्ट ऑलरेडी कैरी आउट कर लिए हैं और 24 घंटे में इनकी रिपोर्ट भी प्राप्त की जा रही है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर जो डोर टू डोर घर जाकर के सैंपल कलेक्शन की है। संजीवनी परियोजना का जो 5वां कंपोनेंट है वो ALS एम्बुलेंस है सर। जिले में इससे पहले हमारे पास 25 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज अवेलेबल थी, लेकिन जो ALS एम्बुलेंसेज हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हो, जिसमें और बाकी सभी सुविधाओं से लैस हो, वो अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो डेलोइट के सहयोग से हमने 8 एम्बुलेंसेज अभी ली है और हर एक CHC के स्तर पे एक एम्बुलेंस को लगभग पिछले 4-5 दिन पहले से ही स्टेशन करा दिया गया है। हर एक एम्बुलेंस पे 2 ड्राइवर्स और 2 लैब टेक्नीशियन रहेंगे सर ताकि 24 घंटे ये एम्बुलेंस ऑपरेशनल रहे। और इस एम्बुलेंस का कार्य ये है कि जिस भी पेशेंट जो होम आइसोलेट पेशेंट है जिसको हमारे यहाँ से कॉल जाता है स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन पे, उसको उसके घर से CHC पे लेके जाना और फिर CHC से अगर जरूरत पड़ी पेशेंट क्रिटिकल हो गया तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आना। तो ये सारा का सारा जो है कार्य ALS एम्बुलेंसेज देख रही है सर। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 5 ऐसे पेशेंट हमने पिछले 2 दिन में शिफ्ट किए हैं एम्बुलेंसेज में इमीडिएटली, जो अचानक से इनकी कंडीशन खराब होने की वजह से क्रिटिकल हो गए थे और इस प्रकार से उनकी जो है जान जाने से हमने बचाई है सर। 24 घंटे ये ऑपरेशनल है सर। और इसका एक फायदा ये हुआ कि पेशेंट्स का CHC स्तर पे ट्रस्ट बढ़ा है, क्योंकि शुरू में पेशेंट्स थोड़े हेजिटेट कर रहे थे CHC पे जाने के लिए, वो सीधा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज टर्शियरी हेल्थ केयर है वहां आना चाहते थे। जब से उनको पता चला कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज CHC स्तर पे तैनात है तो उनका ट्रस्ट बढ़ा है। उनको लगता है कि अगर CHC में उनकी सिचुएशन आगे बिगड़ती भी है तो आधे से घंटे से 40 मिनट के अंदर अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो ये 8 एम्बुलेंसेज सर हमारी हैं। इसका जो पूरा फ्लो पैटर्न है इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस गंभीर मरीजों को कोविड अस्पताल कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में तुरंत प्रभाव से दाखिल करवाने के लिए 9 CHC यानी फील्ड अस्पताल गरौंडा, बल्ला, असंध, इंद्री, कुंजपुरा, नीलोखेड़ी, निगदू व नीसिंग में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात की गई है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये एम्बुलेंस हैं जिनमें विशेषतः ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बाईपैप मशीन, सक्शन मशीन, ऑटो लोडर, स्ट्रेचर की उपलब्धता है। इनमें प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया गया है ताकि मरीजों को रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
अब इस सुविधा के शुरू होने से दूर दराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को KCGMC व जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में जल्द पहुंचाया जा रहा है और गंभीर मरीजों के जीवन को बचाया जा रहा है। कोविड मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा देने के लिए प्रशासन द्वारा कई एम्बुलेंस किराए पर ली गई हैं, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। जिला प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कि सुविधाओं की कमी के कारण कोई एक भी कोविड का मरीज अपनी जान से हाथ न धोने पाए। उसके लिए जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। सर, जो इसका छठा कंपोनेंट है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का है, जो कि हमारे सेक्टर 12 में जो नगर निगम की नई बिल्डिंग बन रही है उसके 2nd फ्लोर पे स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सर एक तो जो हमारी डोर टू डोर सर्वे की टीम है, जिनको हम फील्ड टीम के नाम से जानते हैं, जिनको आपके बाद हमने गाँव में भेजा था, उनका सारा डेटा हमने कमांड सेंटर पे डाला है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 4,21,000 लोगों की स्क्रीनिंग अभी 1.5 लाख गाँव में हम कर चुके हैं, और उसके बाद जो भी ILIs जो इन्फेक्टेड जिनके सिम्टम्स थे उनके 780 लोगों के टेस्ट भी RT-PCR हमने अकॉर्डिंगली करवाए हैं। तो उनका सारा डेटा जो है आप कमांड सेंटर पे देख सकते हैं। साथ ही जो MBBS स्टूडेंट्स डेटा फीडिंग करते हैं पेशेंट की फीडबैक लेके, पहले वो गूगल स्प्रेडशीट पे करते थे, उसको भी हमने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे लिंक कर दिया है। यहाँ पे 24 घंटे ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की ड्यूटीज लगी हैं ताकि प्रॉपर्ली हम हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट कर पाए। सो जैसे ही कोई सूचना आती है कि CHC लेवल से किसी को रेफर किया गया यहाँ के लिए, तो ऑलरेडी हम यहाँ जितने भी हमारे 20 अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड ट्रीटमेंट करते हैं, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इन 21 हॉस्पिटल्स में हम ऑलरेडी बेड रिजर्व करके रखते हैं, ताकि जैसे ही CHC से पेशेंट यहाँ पे पहुंचे तो उसको वेट ना करना पड़े और सीधा उसको या तो ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट हो तो वो, या ICU बेड की रिक्वायरमेंट हो वो उसको इमीडिएटली मिल जाए। सो इससे हमें सर ये मदद मिली कि सारा का सारा, चाहे वो ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हो या ऑक्सीजन का स्टेटस हो हॉस्पिटल्स में या बेड अलॉटमेंट हो, सारा हम एक सिंगल विंडो पे देख सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिनके थ्रू हम ये सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका 7वां कंपोनेंट है सर एक्सटेंड द वार्ड प्लेबुक। इसके लिए मैं डिलीवरी टीम से रोहन जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो इसके बारे में डिटेल में बताएं। Thank you, Nishant. Thank you, Nishant, and Honorable Chief Minister. I just want to say again, as what Puneet has reiterated, I think it has been a fantastic experience working with Nishant and team, Mr. Singh, Uma Shankar ji, because the speed at which we have done is a combination of both teams. And just to bring back one very important part of the integrated command and control centers, we're also building the analytics on the command center to actually say where could there be potential hotspots. So not only working where there's already been a case, but where could be potential hotspots, and therefore we could use resource. As we built this entire model, we said that okay, how can we ensure that what is being built in Karnal can that be scaled and replicated across across Haryana and across the various districts. And we felt that the way to do it is to create a simple playbook. That this playbook, for example, this playbook which the government team, the Deloitte team has been built along with support from Dr. Reddy and the PHFI team and Dr. Dhruva Chaudhary and the PGIS team. This playbook contains all the learnings of what has been done in Karnal, and this could be a reference guide for all our district administrations, all of the divisions, for an accelerated setup and scale, customized to fit for their purpose requirements. It covers all the 6 pillars, whether it's the command center, COVID hotline, virtual health, ambulances, field hospitals, which have been documented in a very simplified manner to know what are the objectives, what are the considerations, and what are the prerequisites to execute these pillars. This playbook will now be augmented with detailed standard operating procedures that can be a starting point for all the officers to replicate this. Nishant, if you could move to the next slide. As we looked at this program, we designed a playbook and an integrated approach, keeping in mind 3 objectives: access to the healthcare system, quality of the healthcare assets,
and experience of the patient in the remotest villages to someone in a town or an urban area in a socially equitable manner. And how can we enhance and improve them in an innovative, replicable and scalable way? Access, the first objective, access to healthcare, is met when someone in the most remote village is called by a telehealth personnel. It's improved when there's a COVID hotline that is effective. It's further enhanced when instead of them traveling to the healthcare centers, the ASHA workers come to them with an isolation kit, armed with an information and awareness pack. It's further improved with mobile pharmacies coming to their doorsteps, and this structure can finally also support the vaccination efforts. The second objective is really in terms of the quality of healthcare assets, which can be improved by, of course, tangible assets like oxygen concentrators to field hospitals. But the quality of assets improves when home isolation kits are equipped fully with things like pulse oximeters and thermometers and actually delivered to patients in their houses, especially in the villages where education or access to information may be limited. Quality can also be improved by reducing the burden on doctors so that they spend time with the patients who need intensive consultation. And quality is improved when we have field hospitals that are equipped with the right amount of concentrators and medical equipment. And finally, the overall patient experience is going to be enhanced when whatever limited resources are brought together by the Integrated Command and Control Center can be mapped to the patient needs. So such a center can collect the data, take tactical decisions to ensure that scarce resources like doctors, bed, oxygen are distributed equitably. When efforts are made to increase the awareness and when telehealth teams constantly check on patients and when they have equipment to check on the health, it all ensures that the ultimate citizen, maybe in the remotest of villages, is taken care of by the government. Therefore, this program and playbook has been designed to look at all the 6 components: the command center, the COVID hotline, telehealth teams, mobile assets like ambulances and pharmacies, fixed assets of field hospitals, and the awareness campaign in a holistic manner and provide healthcare equitably to all citizens. And most importantly, this whole playbook is designed on the patient life cycle. So we're making the patient at the center of everything and linking back to all the 6 components. Back to you, Mr. Singh. Thank you, Nishant, and thank you, Romal. Sir, now I would request you to formally inaugurate the project. धन्यवाद. Can we have the video please, sir? इसमें एक पूरे प्रोजेक्ट पे एक वीडियो बनाइए सिर्फ 2 मिनट की पूरे प्रोजेक्ट को डिपिक्ट करने के लिए, तो प्लीज ब्रिंग इन द वीडियो. घर हमारी जिंदगी में न जाने कितने किरदार निभाता है. बचपन में ये मां का प्यार बन जाता, जवानी में दोस्त का विश्वास बढ़ाता, बुढ़ापे में एक साथी की तरह परवाह है दिखाता, और अब ये निभाने जा रहा है एक और अहम किरदार, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल में शुरू हो रही है प्रदेश की पहली घर पर ही कोविड उपचार सेवा संजीवनी परियोजना. मात्र 3 हफ्तों में तैयार ये योजना बेहद यूनिक है. इसका डिजाइन और कार्यान्वयन किया है टीम डेलॉइट एवं हरियाणा से जुड़े डेलॉइट के ग्लोबल सीईओ पुनीत रंजन ने, और इसकी प्रेरणा है हरियाणा सरकार की कोविड उपचार प्रतिबद्ध सरकार नीति. लेकिन इसे खास बनाता है मरीजों, डॉक्टर्स और सेवाओं के बीच का एक सुपरवाइज्ड होम केयर नेटवर्क, जिसमें शामिल है 200 मेडिकल छात्र, आशा कार्यकर्ता और एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. ये सभी लगातार मरीजों से संपर्क में रहेंगे और उनकी रिपोर्ट, खाना, दवाइयां और परामर्श हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखेंगे. पर इतना काफी नहीं. हरियाणा के हर एक घर तक पहुंचे संजीवनी
इसके लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिसमें मरीजों तक निशुल्क मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर एवं बेसिक दवाइयां पहुंचाने से लेकर इमरजेंसी में वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने तक, तेजी से टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने से लेकर मरीजों को 3 टियर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है, ताकि हरियाणा बने देश की सावधानी की राजधानी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विस्तार का विश्वास लिए आज से करनाल में शुरू संजीवनी परियोजना, स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल। I would now request Puneet Ranjan to summarize the approach and benefits of this program briefly. Well, I think Nishant and Roman did an excellent job. Nishant has worked tirelessly, as has Roman. I think the beauty of this program, Honorable Chief Minister Ji, is the integration of the program and the best practices embedded in the program fit for purpose. So the ASHA network, for instance, the 200 medical students that are manning the telehealth line, the tiered hospital beds that Nishant talked about. I think that is just the totality of that makes this a very unique and I think an innovative program. Nobody else, to my knowledge, within India is doing what we are trying to do here. It is also scalable, so we can take it to the next district, Rohtak, and then across the state. So I think the speed with which we've done this, the fit for purpose mentality, the collaboration, I think makes this a very innovative program. And Nishant and Romal and the entire team deserves a lot of credit. I would also, Devinder, if you wouldn't mind after you introduce them, would also like to highlight Dr. Reddy, whose ideas helped us, as well as Dr. Chowdhury, because they're both frontline doctors that have been working the COVID situation, and they have been absolutely instrumental in making this a success. Thank you, Puneet. Now, before I ask Puneet now to have a small panel discussion with Dr. Dhruv Chaudhary and Dr. Reddy for the way forward and how we can scale and replicate this model, I would like to, sir, very briefly give introduction of Dr. Reddy and Dr. Dhruv. Professor K. Srinath Reddy is the President, Public Health Foundation of India. He is associated with our model project, and he is formerly head of the Department of Cardiology at All India Institute of Medical Sciences. He was appointed as the first Bernard Lown Visiting Professor of Cardiovascular Health at Harvard School of Public Health, and presently serves as an adjunct professor of epidemiology at Harvard. He holds advisory positions in several national and international bodies, and is also an adjunct professor of the Rollins School of Public Health, Emory University, and honorary professor of medicine at the University of Sydney. He was the president of World Heart Foundation from 2013 to 15, and is also a Padma Bhushan awardee. I'd also like to very briefly introduce Dr. Dhruv Chaudhary, who is very well known here in Haryana. Dr. Dhruv Chaudhary is presently Senior Professor and Head Department of Pulmonology and Critical Care Medicine, PGIMS Rohtak, and State Nodal Officer for COVID-19 Control Program. Dr. Dhruv Chaudhary was awarded the prestigious Commonwealth Academic Staff Fellowship in Pulmonology 2009. He is also recipient of Hansraj Nair Memorial Award of ISCM for Best Researcher. Professor Chaudhary is a pioneer in the field of telemedicine in Haryana, and first center of telemedicine in the state was established in Rohtak under his leadership in 2006. He also established the first center in simulation for training of medical students and trainee doctors in critical care, medicine and bronchoscopy at PGIMS. Now I request Puneet to have a short panel discussion with both of them regarding the way forward. Thank you. Thank you, Devinder. Thank you, Devinder, and Dr. Chaudhary and Dr. Reddy. It is again great to be with you. As I said, I've learned a lot from you in the past few weeks. Dr. Reddy, I'm going to start with you.
First, what are the factors to consider for scaling up this model to the rest of the state? And then secondarily, how can this model be applied in the larger public health context in the state of Haryana? Thank you, Puneetji. First of all, I think this model has all the elements needed for an efficient and equitable healthcare system. Though we are assembling all of these components in the face of a public health emergency and trying to demonstrate efficiency in providing the needed services as fast and as well as possible, I believe this has the ability to be scaled up, not only within the state of Haryana, but also elsewhere in the country too. And most importantly, it can actually provide an efficient and equitable health system in the steady state, even when there is no public health emergency. For a long time, we have not paid attention to our primary health care systems and not connected them well enough to advanced care systems. This particular model, by taking care to the home or close to home, by providing intermediate care centers, by connecting them to efficient and reliable emergency transport to advanced care centers when needed, by providing technology as a nervous system of the entire health system in order to gather data for decentralized decision making, as well as supervisory and supportive monitoring at higher levels of the district and the state capital level, and also ensuring that even we are bringing in medical students for an immersion experience, even in their formative period of their careers, in order to understand what the needs of healthcare are and delivering them with a regular engagement. And then, of course, using the frontline health workers as well as the community resources to build in that community connect as well. All of these are absolutely important elements that can actually go into the making of a very strong health system which will withstand any future public health emergencies, as well as serve all the needs of comprehensive primary health care, which is going to be also connected health care and compassionate health care as we build the health systems of the future. And that's where Ayushman Bharat also can start flowering in reality by using all of these components fully. And Mr. Devendra Singh has mentioned that this is a PPP with a difference. I would agree. This is a public partnership. This is not a public-private partnership, but a partnership for public purpose, in which all the partners are actually joining hands, whether it is the public sector, the private sector, the civil society, the community itself, joining hands and bringing the collective resources to the fore for delivering services to meet a very important public purpose. And that itself can be a great model for the future as we create the health systems for Haryana and for the country. I would completely agree. Dr. Chowdhury, you heard Dr. Reddy. I'm certain you agree with him. But from your perspective, what are some of the unique elements of this partnership and this program? And can we use this program down the road for vaccination, as a for instance? Thank you, Puneet. I think I echo. I endorse every single word which Dr. Reddy has said. And I consider him to my mentor now in public health, from super specialty going into it. And thank you, sir, for enlightening us for the last so many years. And I have been actually following that, what he's saying. I agree with every single word he has said. And I agree with you, it's not only the vaccination program, but also the post-COVID care which we will be needing. I think at both places this can be used. And the so-called therapy which we're talking, probably if we use the system efficiently, it can work it out. And what is unique to me, what Sir has said, is a coordination between the different organs the way it is there. And that's what I realized, that when the government decides, they coordinate, they deliver. And I absolutely endorse every single word what Sir has said. And what you are saying for vaccination, as well as for other public health purposes, it reminds me the way the armed forces, they move with their field hospitals.
So to have a sustainability, scalability is one part, but we have to ensure that this model remains sustainable. I think we need to, that's where it becomes very important, what we have created, have a great, close coordination with the static organizations which are there, so that it carries itself together. And I think it can also become a great model for teaching and training of our future doctors, nurses, and I think it's the time for us to experiment. I hope Dr. Reddy agrees with me. Now gradually from the doctors we start shifting to the nurse-based care or a community health worker care, which will be more sustainable, which will be more deliverable, and which will be more community-based. I agree. Devinder, before I turn it back to you, Honorable Chief Minister, one of the things about moving to Rohtak, my mother lives there, so I promised her that we will do the next pilot in Rohtak. But the other reason is, as I've talked to Dr. Chowdhury, this gives us an opportunity to try it in another district and see quickly if the model works or not. I mean, were we just lucky that we had Nishant and we had Devinder and others? But I think this will be a test to see if the model works when we try it in another district. So that's where we're going next. Thank you, Puneet. Now at this stage, I will request Honorable Member of Parliament Shri Sanjay Bhatia जी, जो करनाल के लोकप्रिय Member of Parliament है और हमारे इस कोरोना की लड़ाई में करनाल जिले में खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर और पूरी टीम के साथ और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने पर्सनल फंड से MP लैड से भी 50 लाख कंट्रीब्यूट भी किया है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्लान करनाल के लिए हमें बनाई है. तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री संजय भाटिया टू से फ्यू वर्ड्स. धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी. रिस्पेक्टेड CM साहब, होम मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर और स्पेशली पुनीत रंजन जी, ग्लोबल CEO ऑफ डिलॉयट, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हरियाणा को चूज किया और हरियाणा में सबसे पहले करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी को, मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज किया. अभी बार बार रोहतक की बात आ रही थी. मेरा ये मानना है ग्रेट पीपल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता बाउंड्रीज तक. और आप भी अच्छे इंसान हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं अपने मुंह से कहना भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि सब लोग इनको राजनीति का संत कहते हैं, ए सेंट इन पॉलिटिक्स. एक संत है राजनीति में और अपोजिशन के लीडर्स तो अकेले देखो पॉलिटिकल रीजन से क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यक्तिगत बातचीत में बोलते हैं. क्योंकि आपके मदर भी, मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग जरूर देखें, वो आपको बता देंगे इस बात का मतलब. रोहतक वाली लैंग्वेज में बोलता हूं. डॉक्टर ध्रुव चौधरी भी आपको बता सकते हैं कि पर्सनल लैंग्वेज में वो ये बोलते हैं कि यू खट्टर मानस बहुत बढ़िया है. ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं. एक अच्छे इंसान है, आपको बताएंगे बाद में. तो आपने इसको चूज किया, उसके लिए थैंक्स. और एक बात और कहना चाहूंगा पुनीत जी, इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी इसका अमाउंट नहीं है जो आप 5 CR यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ये नहीं है. इसकी ब्यूटी डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने आपको बताया. इसकी ब्यूटी आप एज ए फैमिली मेंबर, एक जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उसको एज ए फैमिली का बड़ा कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए करता है. इस प्रोजेक्ट में वो भाव है, इसके लिए आपको मैं सल्यूट करता हूं और पूरी एंटायर टीम को. और करनाल के लिए भी मैं आपको एक टच दे सकता हूं. कल्पना चावला हमारे करनाल की बेटी, उसने US के लिए सर्व किया और आप ये समझ सकते हैं कि आपने शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट की करनाल से की और अभी आप चर्चा कर रहे थे कि पूरे हरियाणा में इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना. मैं कहता हूं कि ये रोल मॉडल बनेगा पूरी कंट्री का. जब हमारे कंट्री के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी 100% इसको लागू वो पूरी कंट्री में करेंगे, मेरा विश्वास है. और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से लैब टेस्ट के बाद डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर रेड्डी अच्छे से बता सकते हैं कि इसके साथ अगर आप CT स्कैन को भी जोड़ दें इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि इन्फेक्शन का लेवल CT से पता चलता है. अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आता तो मेरा एक सुझाव है, और पोस्ट कोविड के लिए भी ध्रुव चौधरी जी ने बोला वो अच्छा है, वैक्सीनेशन के लिए भी बोला बहुत अच्छा है. ये सारा इसके साथ जुड़े और हरियाणा सरकार पैसा खर्च करने में कभी भी पीछे नहीं है, ये मैं जानता हूं. इस समय में जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल गई पुनीत जी, उस समय में भी हरियाणा का रेवेन्यू
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर दिखाया है, ये पूरी कंट्री में एक एग्जाम्पल है, सब इसको कोट करते हैं। और मैं आपका धन्यवाद, केवल मैं ही नहीं, मेरी लोकसभा के इस डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर 5 विधायक हैं, एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें से 3 मेरे साथ बैठे हैं, राम कुमार कश्यप जी, हरविंदर कल्याण जी और धर्मपाल गोंदर जी, और जो चौथे हैं वो आज इस प्रोग्राम का उन्होंने इनॉग्रेट करा, माननीय मनोहर लाल जी जो भी सीएम है, वो भी इस एमएलए है यहाँ के करनाल के। तो 4 लोग आपके साथ जुड़े हैं, मेरे मेयर भी यहाँ के करनाल के रेणु बालाजी जुड़े हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं सब एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब। और विशेष रूप से मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं ये एक शब्द सच बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम हरियाणा के अंदर कल्पना चावला ने एक इतिहास रचा है, मेडिकल कॉलेज ने, इतने बड़े हॉस्पिटल्स में जहां लोगों के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं है, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए वहां लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी छुट्टी करवाकर कल्पना चावला में अपना इलाज करवाया है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो पर्सनल टच पेशेंट्स को दिया है, अच्छे हॉस्पिटल से लोग ना इलाज करवाकर यहाँ पर करवाने के लिए आए हैं। और आप एक अच्छे इंसान हैं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर थैंक्स करूंगा कि आपने इस पायलट प्रोजेक्ट की, जो एक कंट्री में एग्जाम्पल बनने वाला है, वहां की शुरुआत आपने करनाल से की। धन्यवाद। Thank you, Shri Sanjay Bhatia ji, Member Parliament from Karnal. I would now request Honorable Education Minister कंवरपाल जी, वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं और 2-3 बार उनकी विजिट हुई है करनाल में, पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ, अपने सभी वर्कर्स के साथ और पूरी टीम के साथ उन्होंने घंटों मीटिंग लेके हमारा मार्गदर्शन भी किया है और लगातार हमें सपोर्ट किया है। वुड नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी टू एड्रेस। थैंक यू। धन्यवाद मित्र सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान मनोहर लाल जी, हेल्थ मिनिस्टर श्रीमान अनिल विज जी और हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, डॉक्टर साहबान, मैं आज संजीवनी परियोजना के शुभारंभ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रीगण का, विधायकगण का, सभी अधिकारीगण का आभार व्यक्त करता हूं और इस योजना का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी के मार्गदर्शन में और सभी हमारे अधिकारियों के प्रयास से जिस प्रकार से कोविड-19 को कंट्रोल किया गया है वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा प्रयास है। और हालांकि हमारे यहाँ और दूसरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट है, विशेष करके दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट जो है वो हरियाणा में आए, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि हमारे पास हर टाइप के जो बेड्स हैं वो सरप्लस हैं। यहाँ के आईसीयू के भी बेड हमारे पास और वेंटिलेटर वाले जो बेड हैं वो भी हमारे पास आज की तरीके में सरप्लस हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है और जिस प्रकार की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, चाहे होम आइसोलेशन की बात है, चाहे जैसे अभी कल्पना चावला हॉस्पिटल जो है, कल्पना चावला जो कॉलेज है उसमें, मेडिकल कॉलेज जो है उसमें जिस प्रकार की एक परियोजना आपने दी वो काबिले तारीफ है, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में इस परियोजना का लाभ उठाया जाएगा आने वाले टाइम में जब इसकी जानकारी पूरे देश में जाएगी। और बहुत ही अच्छा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है और मैं इस सारे काम में श्रीमान संजय भाटिया जी का भी बहुत आभारी हूँ और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरा टाइम लगाकर इस सारे इस विपत्ति काल में लोगों की मदद की। और इसके साथ ही जो एनजीओ, काफी हमारे यहाँ 17 हॉस्पिटल हैं और 17 के 17 हॉस्पिटल में हमने जब बैठक की थी तो एक एनजीओ की ड्यूटी लगाई और उसने अपने साथ 3-3 लोग जोड़ दिए और उसके कारण से मैं बहुत बड़ा लाभ जो है करनाल में काम करने मिला। मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विशेष करके जो ये डिलॉयट कंपनी है इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से इन्हें मानवता का परिचय दिया
चाहे ऑक्सीजन एक्सीलरेटर की बात है, चाहे एम्बुलेंस की बात है, जिस प्रकार से इतना धन खर्च करके उन्हें मिली है, तो उसके लिए भी हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you very much, sir. Education Minister Shri Kumar Pal ji. Now, for some reasons, I think Health Minister was supposed to join. Now, he is not able to join. अब मैं, before I invite Honorable Chief Minister to give his speech, I would like to say just two things. एक कहावत है, या सुकून से जी लो या जुनून से जी लो। तो हमारे चीफ मिनिस्टर से हमें प्रेरणा ये मिलती है कि जुनून से किस तरह से जिया जाता है। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल मिडनाइट ही वर्क्स एंड चेहरे पे कोई शिकन नहीं, विद द सेम एनर्जी एंथुजियाज्म, और वो हमारे सब के लिए इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर रह गुजर पर शम्मा जलाना है मेरा काम, हवा के तेवर क्या हैं ये मैं देखता ही नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर। आज के इस बहुत ही, जिसको कहना चाहिए प्रशंसा करने लायक ये कार्यक्रम, जिसका नाम संजीवनी परियोजना ये दिया गया है, हम सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के मेरे शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी, हमारी लोकसभा करनाल पानीपत के सांसद, बहुत ही ऊर्जावान हमारे युवा नेता श्री संजय भाटिया जी, हरियाणा सरकार में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री उमा जी, और सबसे ज़्यादा मैं आज सम्मान के साथ देख रहा हूँ हमारे डेलाइट ग्लोबल के सीईओ श्री पुनीत रंजन जी। पुनीत रंजन जी का परिचय तो हमारा जब इन्वेस्टर समिट हमने किया था गुड़गांव, उस समय हुआ था, लेकिन बहुत निकट से उस समय भी जानने का मौका नहीं मिला था। अभी पिछले दिनों जब हमारी इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई तो बहुत नज़दीकी से इनका हमारा परिचय हुआ कि रोहतक से संबंध रखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो हम दोनों कॉलेज मेट्स भी रहे हैं। हमारी दोनों की पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई है, नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रोहतक। और आपका परिवार, अभी वहाँ माता जी रहते हैं, मॉल टाउन का डी पार्क है, और संयोग से डॉक्टर चौधरी तो जानते ही हैं रोहतक के सारी ज्योग्राफी को। डी पार्क जहाँ पुनीत रंजन जी का घर है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी घर है। तो हुड्डा जी, आप, मैं, पुनीत रंजन जी, इस नाते से संबंध तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बनते ही हैं। संजय भाटिया जी ने जो कुछ कहा उसमें प्राइवेट टॉक्स में ये सारी बातें होती हैं, करते हैं, क्योंकि कुल मिला करके मेरा एक स्वभाव रहा है कि सत्ता को भोगने के लिए नहीं, सत्ता को सेवा का माध्यम ये बना करके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण, विशेष तौर पर डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर ध्रुव चौधरी, और जो साथ में हमारे रोमल शेट्टी जी, और हमारे युवा डिप्टी कमिश्नर करनाल के, जिन्होंने इस सारी योजना में बहुत भूमिका अपनी निभाई है, श्री निशांत यादव जी, हमारे सभी विधायकगण, करनाल जिले के हमारे तीनों विधायकगण वहाँ हैं, हमारे एसपी महोदय, अन्य सभी पार्टी के भी पदाधिकारी, और इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए जितने भी सज्जन वृंद, मीडिया के लोग, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र बंधु। आज के इस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूँ कि आज की एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई कि इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सोल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर था उसको माना जाता था एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर है, लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज़ बिकम द मोस्ट हमारा प्रायर सेक्टर। चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे,
लेकिन जैसे देश और दुनिया में, केवल हरियाणा ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया जिस प्रकार से किसी एक ऐसी बीमारी में से, महामारी में से गुजर रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं मानवता पर भी संकट है। तो मानवता के प्रति संकट जब दिखता है तो सबसे पहला काम होता है इस मानवता को बचाना। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो ये एक हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी। सुनी थी हमने कभी, प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियाँ देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है, तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष, और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी, और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स, कोविड पॉजिटिव जो मरीज़ हैं वो हमको देखने को मिले थे। और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे, 30-32 हज़ार, 22,000। हाँ, तुम्हारे राजीव जी पीक पर 22,000, तो हमारे राजीव अरोड़ा जी हैं, ठीक कर रहे हैं इस बात को। और अब जो हमने देखा विद इन 2 मंथ्स, ठीक मार्च में ही ये फिर शुरू हुआ था, और इन द मंथ ऑफ मई, हम 10-11 मई को जब बैठे थे तो ये हमारा पीक पहुंच गया था 1,16,000 एक्टिव पेशेंट्स, और डेली के जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी शायद क्या 15,000, 16,000, हाँ 15-16,000 क्रॉस कर गए थे। तो जिसको कहना चाहिए 5 टाइम्स ये बड़ा एक इम्पैक्ट इसका महामारी का देखने को मिला। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज़्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि सारे काम पहले से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्रेगमेंट्स ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और ICUs पहले से हैं, और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, जो कोविड के सेंटर्स हैं, उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। बाद में हमको बहुत बड़ी सपोर्ट आप जैसे लोगों से, जो कॉरपोरेट जगत के जितने लोग हैं, उसमें CSR के माध्यम से हमको बहुत सी चीज़ें मिली। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमको मिले, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के हमको PSCs मिले हैं, हमको वेंटिलेटर्स हमको मिले हैं, हमको बहुत सी चीज़ें ऐसी, दवाइयाँ बहुत मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बाहर से मिली हैं, और उस सबके माध्यम से मैं कह सकता हूँ मैंने अपनी आज की पोजीशन को तो कवर किया है, लेकिन आगे भी इसको रोकना है, चेन ब्रेक करनी है। चेन ब्रेक करने के लिए ये जो नया कार्यक्रम आज दिया गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें एक प्रकार से ऑनलाइन डॉक्टर्स, खास करके स्टूडेंट्स को हमने उपयोग जो किया है, इसमें 200 स्टूडेंट्स लगातार ये ऑनलाइन संपर्क करेंगे, लोगों से जानकारियाँ लेंगे, और फिर उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र लगेंगे, वो सुपरवाइज़र जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइडेंस देंगे, उनको कंसल्टेंसी देंगे कि कौन सी दवाई करनी है, उनके टेस्ट कराने हैं, टेस्ट करा करके उनको लेके आना है। एम्बुलेंसेज, इसका भी हमने विचार किया, तो एम्बुलेंसेज का भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारे यहाँ एम्बुलेंसेज
वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलाने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी हमको जो सपोर्ट मिली, कई विभागों ने सपोर्ट किया, यानी रोडवेज ने भी, हरियाणा रोडवेज ने कहा कि हमारे पास जितनी AC बसेस खड़ी हैं या जितनी हमारी मिनी बसेस है, उनको आप एम्बुलेंस बना करके उपयोग करिए। 110 हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बसेस है उनको कन्वर्ट किया एम्बुलेंसेज में। 25 हमारी AC बसेस हैं, AC बसेस को 6-6 बेड्स लगा करके एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया कि और कुछ नहीं तो 150 बेड्स इसमें हम लगाएंगे। ऑक्सीजन का जब संकट आया तो इसमें एक विचार और बना कि हम लोग जहां ऑक्सीजन हमें यानी प्राप्त होती है गैसियस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन तो हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म की जो ऑक्सीजन है दैट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसलिए क्यों नहीं कहते प्यासे के पास कुएं के लो जाओ। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को वहाँ जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन है वहीं पर हॉस्पिटल बनाएं। तो 2 हॉस्पिटल हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनाए गए हैं कि एक पानीपत में, एक हिसार में, जहाँ गैसियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त है। हमने 500 बेड के हॉस्पिटल्स वहाँ बनाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और हमने काम किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन आज आवश्यकता ये है कि इस चीज़ को कैसे क्योंकि वायरस ऐसी चीज़ है जिसको जड़ से ना ख़त्म किया जाए तो कब ये उभर करके वापस आ जाएगा। और जब एक बार आगे बढ़ना शुरू करता तो इट मल्टीप्लाइज यानी ज्योमेट्रिकली, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करता तो किस प्रकार का प्रभाव कितना पड़ेगा उसको हमको रोकना होगा। तो हम अब घर घर में, शहरों में तो हमारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल वगैरह सारे पर्याप्त हमने बताए, गांव में भी हमारे जितने CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये बने हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते। अब धीरे धीरे गाँव में फैलना शुरू हुआ। अब कोविड गाँव में जब फैलना शुरू हुआ तभी विचार आया कि हमको बिल्कुल नीचे डाउन लेवल पर हर घर में जाकर के लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तब हमने 8000 टीमें, जिसमें आंगनवाड़ीज़ हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर हमने एजुकेशन के कुछ लोग भी लगाए हैं जो खास करके साइंस ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे करके 8000 टीमें बनाई गई ताकि घर घर जा करके हर व्यक्ति का वो यानी प्रारंभिक जो जांच है वो करनी चाहिए। उसमें से अगर कोई लक्षण ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि उनमें से यानी हमारे 6500 गाँव में से लगभग 5000 गाँव में हमारी टीमें पहुँच चुकी हैं और वहाँ हमने 1100 के आसपास आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अभी लगभग 20 लाख परिवारों में हमारी टीमें जा चुकी हैं आउट ऑफ 60 लाख फैमिलीज, और 80 लाख लोगों को उनको टेस्ट किया जा चुका है। ये टीमें लगातार काम कर रही हैं, बहुत दूर नहीं, 15 मई से ही हमारा ये काम शुरू हुआ। आज हम 24 मई, 8-9 दिन के अंदर ये सारा यानी हमने काम किया। आने वाले 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि स्पीड से चलेंगे, हम पूरी गाँव की आबादी को और उसमें हम कवर कर लेंगे। और उसमें एक विशेष बात ध्यान देने लायक यह है कि लगभग 3000 लोग ऐसे मिले इस सारे अभियान में जो कोविड पॉजिटिव थे, और उनको ला करके फिर उनको जहाँ भी कहीं रखना था, उनको आइसोलेशन सेंटर में रखना था या उनको PHC में, CHC में ऑक्सीजन के जहाँ बेड्स है अथवा जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसी जिसकी स्थिति थी उसको हम ले जा करके वहाँ इलाज करा रहे हैं। कल्पना करें कि अगर ये 3000 लोग हम ना ढूंढ पाते तो ये 3000 भी कई लोगों को प्रभावित करते और शायद कई हज़ार लोगों को और ही पॉजिटिव करते। तो रूट लेवल पर जा करके इनको ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। होम आइसोलेशन, लगभग 90,000 लोग हमारे होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव रहे हैं, काफ़ी उसमें ठीक हो गए हैं। आज भी जो कोविड पॉजिटिव ऐसे होम आइसोलेशन में हैं उनको होम आइसोलेशन किट्स दे रहे हैं हम। किट्स के अंदर ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, दवाइयाँ हैं, और भाप लेने के लिए जो स्टीमर, तो ऐसे सारी चीज़ें हम घरों में पहुंचा रहे हैं। और इन सब कामों को करने के लिए हमको आज विश्वास है कि हम इस वेव के चेन को यहीं तोड़ेंगे। फिर भी तैयारी में, जैसे मैंने कहा कि अभी पोस्ट कोविड अफेक्ट्स, उसके अंदर एक अफेक्ट जो सबसे खतरनाक अब आगे उभर रहा है वो है ब्लैक फंगस। कहीं कहीं वाइट फंगस की बातें भी आ रही हैं, तो ये ब्लैक फंगस को भी हमको चेक करना है। डॉक्टर ध्रुव बैठे हैं, ये हमारे कोविड इस सारे के नोडल ऑफिसर हैं एक प्रकार से, तो नोडल अधिकारी के नाते से इनको और एक डॉक्टर्स की जो टीम है ये लगातार बैठती भी है और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और दवाइयों की भी जो स्केर्सिटी कई बार होती है वो भी चैलेंज होता है। रेमडेसिविर का एक चैलेंज आया था, काफ़ी हमने कवर कर लिया। फिर टॉसिली, इसके इंजेक्शंस का ये अभी भी संकट चल रहा है, कोई बहुत बढ़िया स्थिति में हम नहीं आए हैं। और आज फिर ब्लैक फंगस, इसके जो इंजेक्शंस हैं
वो भी हमको मिल नहीं रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमको 1200-1400 ही इंजेक्शन मिले हैं, लेकिन पेशेंट्स आज हरियाणा में लगभग 400 तो 2 दिन पहले थे, आज की लेटेस्ट स्थिति मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे, और एक बड़ी वेरी कर रही है जो डिमांड है पेशेंट्स की। कोई कह रहा है कि कम से कम 50 इंजेक्शन चाहिए एक पेशेंट को, कोई कह रहा है कि 150 चाहिए। तो ये तो डॉक्टर्स जानते हैं, आप लोग जानते हैं, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर ध्रुव ये बता सकते हैं ठीक से कि हम कितने इंजेक्शंस की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। आज 400 हैं, अब किस गति से ये बढ़ता है या ये यहाँ रुकता है, डाउन ट्रेंड आता है, ये सारी बातें हमारे लिए चैलेंज है। तो इस चैलेंज को स्वीकार करके भी, खास करके हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है, डॉक्टर एच के अग्रवाल भी बैठे हैं मुझे सामने दिख रहे हैं, तो ऐसे सब लोग मिल करके डॉक्टर्स की टीम इन चैलेंजेस को भी ध्यान करे और इसको हम आगे बढ़ा सकें। और आज तो मैं क्योंकि जो इस कार्यक्रम को शुरू किया है, एक बात और भी जो चैलेंज के रूप में मुझे बताई गई है, थर्ड वेव जो आ रही है, तो थर्ड वेव में ऐसा बता रहे हैं कि ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटैक कर सकती है। तो हमारा पीडियाट्रिक्स का भी जो विज्ञान है, इसको भी हमको आगे बढ़ाना होगा। बच्चों के लिए वार्ड्स हैं, बच्चों के लिए बेड्स हैं, वो सारे भी आज ही हमको तैयारी करनी होगी, सोचना होगा। हमारी एक टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि हम मौके पर फिर पछताए नहीं, इसलिए पूर्व तैयारी जितनी आवश्यक है उसको भी हमको ये करना होगा। तो आज तो कुल मिलाकर मैं श्री पुनीत रंजन जी, जिन्होंने इस सारे विषय को शुरू किया है, और इस पर जब आगे इस प्रोजेक्ट का आगे बढ़ाने की बात आई है तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने हिसार की, रोहतक की बात आपने चुनी है, और रोहतक के साथ और इसको आगे कैसे बढ़ाना होगा बैठ करके आपस में हम सब लोग विचार करेंगे। ये पूरे हरियाणा में तो हमको लागू करना है, तो हमारे अपने हाथ में, हम लागू कर ही सकते हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे विचार कर रहे हैं, बाकी लोग भी विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा संजय भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी का एक स्वभाव है, हमारे मोदी जी कोई भी अच्छी चीज़ होती है, एक बार उनको ध्यान में आती है तो ही नेवर लूज द टाइम टू इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। तो ये विषय अगर उनके ध्यान में आता है तो मुझे लगता है इसको वो ज़रूर इसको रेप्लिकेट करने के लिए सारे देश में लागू कर सकते हैं। अच्छा कार्यक्रम है, इस अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से जिसको कहूँगा कि जैसे हेल्थ केयर सर्विस को डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट ये ले जाने की सर्विस है, ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो। आपने इसमें सारा प्रोजेक्ट जो तैयार किया, ये जो संजीवनी, हमारा संजीवनी परियोजना, जिन लोगों का भी इसमें योगदान रहा है, जिनकी कल्पना रही है, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, ऐसे सब लोगों को, खास करके श्री पुनीत रंजन जी, फिर हमारे रोमल शेट्टी जी, निशांत यादव जी, देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस प्रयत्न को आगे बढ़ाया है और आज इसका जो उद्घाटन किया है, हमारे जो सेंटर है कमांड सेंटर, और उसके उद्घाटन के बाद एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो होगा, इससे लाभ मिलेगा और हम इस बीमारी महामारी में से बाहर निकलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your inspiring address. In fact, Honorable Chief Minister is highly tech savvy, और in fact वो मेरे को पहले भी जब भी चर्चा की तो he was always wanting कि टेली कंसल्टेशन का जो फील्ड है उसको एक्सपैंड करके पेशेंट केयर के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो वी आर हैप्पी एंड ग्लैड दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी कुड यूटिलाइज द टेली कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। नाउ बिफोर आई प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स, सर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने पहले भी की थी, एंड ऑनरेबल सीएम हैड एग्रीड कि सर जो टीम ने दिन रात मेहनत की है दोनों तरफ से, डेलॉयट और हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, तो प्रोग्राम के खत्म होने के बाद 5 मिनट सर आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे और उनको एक एक टीम के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट दे विल फील इंकरेज्ड और उनकी हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल। So I in terms of proposing a vote of thanks, first of all I would like to first and foremost like to thank Honorable Chief Minister for his vision, direction, for his blessings, total support all along, and he had given us complete freedom and free hand to implement this project in Karnal as a model. In fact, we feel all inspired, as I said, when we see him working from morning till night, and it's always a source of inspiration whenever we see him. और जैसे उनके बारे में फिर कहूँ मैं कि वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब काम कोई लेते हैं तो वो काम सिरे पे चढ़ने ही होता है। I would also like to thank Honorable Health Minister, who has always advocated and supported the home care model and to reduce pressure on the tertiary care. And he is the foremost COVID warrior. Like a general, he is leading from front, and he has also suffered corona and personal injury, and despite that,
he is leading the battle. I would like to thank Honorable Education Minister, who is in charge of Karnal district and who guided us and supported us all through. I am thankful to Shri Sanjay Bhatia ji, who has personally donated, contributed and fully associated with the project. I would like to profusely and profoundly thank Mr. Puneet Ranjan for his extraordinary support and for his entire team and for his tremendous speed of decision making, absolute clarity of thought, total commitment, dedication and passion to contribute for the welfare of the health of the citizens of his home state in general and Rohtak in particular. So I would like to specially thank him. I would like to thank ACS Health, Shri Rajiv Arora ji, who is the most familiar face in our fight against Corona since first wave, and because of his relentless battle, he has been fighting this battle on all fronts like a general with his dedicated team of frontline workers. I think the state ranked among the top state in terms of performance against Corona, in terms of fatality rate, in terms of positivity rate and so on. So I would like to thank him for extending full support, wholehearted support. He, along with also Additional Chief Secretary Mr. Alok Nigam, who is from medical education, and for Kalpana Chawla Medical College and any other support which we needed. He has been extremely helpful, and therefore I would like to personally extend my gratitude to him. I would like to thank Shri Umashankar ji, who is personally associated in our review meetings twice, at least on 2 occasions, along with Dr. Amit Agarwal. And sir, they have been tremendous source of support and inspiration in going ahead with this project and also for planning for future replication of this project. And so therefore I am especially thankful to them. Sir, I am thankful to the absolutely brilliant team of Romal Shetty and the COVID India team, and of course Nishant Yadav and his entire team. And we will introduce individually each one of them to Honorable Chief Minister as we conclude this program. I would like to also thank Dr. Dhruv Chaudhary, who in fact I would say who seeded this program, so to say, and he introduced me to Mr. Puneet Ranjan, and that is how this project was initially born. I would like to, and he has been a constant source of encouragement because he was the one who trained the initial batch of 200 students before they became the teleconsultant experts for dispensing this home care. I would like to thank Dr. Reddy, whose support and whose dedication, whose association with this project will go a long way, not only for the success of this project, but also in terms of making this project successful throughout the state and maybe even across the country. I would also like to thank the entire team of Nishant Yadav especially, and his bright young team of Ayush, Neeraj Kadyan and Sandeep, and his SDMs, Additional Deputy Commissioner, CMO Dr. Yogesh, Mr. Dureja, Director Kalpana Chawla Medical College, and the entire team for working day and night to make this project successful. So in the end, I would like to once again say all who are connected with Link and media and all that. I would like to thank the members of the media, especially print and electronic media, because they have been very appreciative of our efforts, and all along they have taken the message of this model and also the fight against COVID of the government of Haryana. All are in contact with Link far and wide, and on all the members of the media who today are linked to the YouTube link, which has been spearheaded by Dr. Amit Agarwal and Dhruv and his entire team, and I want to especially thank them because they are all connected in the live webcast or telecast of this program. और last में मैं सर इतना ही कहूँगा कि although we ourselves believe that what we are doing only is a drop in the ocean, लेकिन जैसे कहते हैं कि the ocean will be that much less with that missing drop. तो जैसे कहा जाता है कि माना कि सरजमी को गुलजार ना कर सके हम, कुछ खार यानी कांटे, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जहां से हम. Thank you very much. If I could just, Honorable Chief Minister, say one thing. The one other person that we have to thank is Devinder. He has worked tirelessly, and it's been just a real pleasure to get to know him.